Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में topmost. Now after the concepts of coefficient, let us now move on to the next part, which is called the constant term. Now what is a constant term? Constant term समझेंगे. Let us take an example to understand the constant term. 2x plus 5. Now here there are two terms. First is 2x, second is 5. This is the first term. This is the second term. First term is made up of two parts. A constant 2 multiplied by a variable x, or multiplied by a literal x. So the first term of this expression is 2x, which is a combination of a number and a letter. However, if you look at the second term has only a number. It has no letter. सेकेंड टर्म 5 में कोई भी लेटर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कोई भी लेटर अटैच्ड नहीं है. तो एक्सप्रेशन के ऐसे टर्म्स जिसमें कोई भी लेटर अटैच नहीं होगा, जिसमें कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होगा, उसे बोला जाएगा कांस्टेंट टर्म. आई रिपीट, एक्सप्रेशन का वो टर्म जिसमें कोई भी लेटर अटैच नहीं है, जिसके साथ कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, उसे कांस्टेंट टर्म कहेंगे. यहां पर फर्स्ट टर्म 2x में 2 के साथ एक लिटरल x अटैच किया हुआ है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं होगा. हाउएवर सेकेंड टर्म 5 में कोई भी लिटरल फैक्टर अटैच नहीं है, कोई लेटर अटैच नहीं है, तो 5 को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म. 5 इज द कांस्टेंट टर्म. आई विल रिपीट माई सेल्फ. जब नंबर के साथ कोई भी लिटरल फैक्टर या कोई भी लेटर अटैच ना हो, तो वो नंबर कहलाता है कांस्टेंट term. Now talking about the constant terms, let's take one more example. X square plus y cube minus 2 upon 3. Now here x square and y cube are variable terms, and minus 2 upon 3 has no letter attached to it, so minus 2 upon 3 will be the constant term. So remember, the constant term is the term which has no literal factor or no letter attached with it. And it is very important to consider the sign also. जैसे हमने यहां पर सिर्फ 2/3 नहीं लिया है, 2/3 के पहले की साइन भी ली है, तो कांस्टेंट टर्म अलॉन्ग विद द साइन हमें लेना है. अगर प्लस का साइन है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हिडन होता है. लेकिन अगर माइनस है तो आपको वो टर्म के साथ माइनस का साइन भी लेना पड़ेगा. कांस्टेंट टर्म. Now after the constant term, let us understand the like terms. Like terms are the terms having the same literal factors. For example, 2x and 7x. In both 2x and 7x, the literal factor is x, and since both the terms have same literal factors, we can say that they both are like terms. Let us understand one more example. Suppose we take 5y square and 12y square. In both the terms 5y square and 12y square, the literal factor is y square, and since the literal factor is same in both the terms, we call it like term.
terms. So like terms are terms in which the literal factors are same. After the like terms, talking about the unlike terms, the terms not having the same literal factors are called unlike or dissimilar terms. ऐसे टर्म्स जिसमें लिटरल फैक्टर सेम नहीं होते हैं उन्हें अनलाइक टर्म्स कहा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2x and 5y. The literal factor in 2x is x. The literal factor in 5y is y. They are not same. And when the literal factors are not same, then we call it unlike terms. So 2x and 5y will be unlike terms. Similarly, 2x and 2x square. Remember, even though the letters are same, but the powers are not same. Here, the literal factor is x. Here, the literal factor is x square. So they are also unlike terms because the literal factors are not same. Even though the letters are same, but their powers are different. तो भी वो क्या हो जाएंगे? Unlike terms हो जाएंगे. अनलाइक टर्म्स मतलब जो हमारे लिटरल फैक्टर है वो अलग अलग होंगे. What do we mean by sign convention? By sign convention we mean that what is the operation that we have to perform, which we have already discussed in the integers, but let us review it once again. So plus and minus, if we have one positive term and one negative term, then our operation will be subtraction and the sign will be of bigger value. Now what are they? We'll keep on discussing as we will proceed. If one term is minus, another term is plus, then the operation is subtraction and the sign will be of bigger value. If both the terms are negative or minus sign term, then the operation is plus but the sign is minus. And if both the terms are plus and plus, then the operation is also plus and sign is also plus. This is in case of addition and subtraction. In case of multiplication, remember, plus multiplied by minus is minus. Minus multiplied by plus is minus. Minus multiplied by minus is plus. And plus multiplied by plus is plus. So these are the sign conventions we will use for addition, subtraction and multiplication. Subsequently, the operations for multiplication and division remains the same. So plus divided by minus will be minus, minus divided by plus will be minus, minus divided by minus will be plus, and plus divided by plus will be plus. We will do this operation of division as we will continue and when we come across any questions. Term which is 1 cube. Now 1 cube is multiplication of 1 3 times. It is 1 into 1 into 1. Remember, 1 into 1 into 1 is only 1. In fact, also understand an important point. Whatever power of in 1 to the power of 100, this is also 1. क्योंकि 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी. पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 1 की जगह ये -1 हो जाए, तब थोड़ी सी आपको एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर 1 की जगह -1 हो जाए और पावर अगर इवन हो, तो इसका मतलब होता है -1 इंटू -1. अब यहां पर हमें साइन भी मल्टीप्लाई करने होते हैं, तो माइनस इंटू माइनस हमने देखा प्लस होता है और 1 इंटू 1 1 होता है. तो अगर हमारा नंबर -1 है और उसका पावर इवन है, जैसे 2 4 6 8, तो वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी. लेकिन अगर हमारा नंबर -1 है और उसका पावर एक ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल 3, तो -1
इंटू -1 इंटू -1 करना होगा। 1 इंटू 1 ये तो 1 ही रहेगा, पर अब साइन में देखिएगा माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, और प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर अगर पावर ऑड हो तो फाइनल आंसर -1 आता है, अगर पावर इवन हो तो फाइनल आंसर +1 आता है, अगर पावर ऑड नंबर हो तो फाइनल आंसर -1 आता है। इसे इंटीजर के चैप्टर में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। थ्री एक्स वाई टू द पावर ऑफ 4 minus 15x square y plus 4z. Now we will solve every term one by one. The first term is 3xy to the power of 4. The value of x we have to take as 1. The value of y we have to take it as -2. And the value of z we will take it as 3. Now let us break down each and every term and solve it. First is 3xy to the power of 4. Now first of all 3xy to the power of 4 means 3 multiplied by x multiplied by y to the power of 4. y to the power of 4 means y की जो भी वैल्यू है उसे 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। नाउ 3 के प्लेस पर आप 3 ले लो, मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 है, सो इन प्लेस ऑफ x आई विल राइट डाउन 1 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू -2 है, तो वो हो जाएगा -2, और उसका पावर 4 है तो हम लिखेंगे -2 टू द पावर ऑफ 4. x वैल्यू इज 1, y वैल्यू इज -2. Now moving ahead from here, this will become 3 multiplied by 1 multiplied by, let's understand this, -2 to the power of 4. -2 to the power of 4 इसका मतलब होता है -2 का मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. अब याद रखिए कि अगर हमारा कोई नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर इवन हो, जैसे यहां पर -2 नेगेटिव नंबर है और उसका पावर इवन है, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसका साइन प्लस होगा. आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, और फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस. तो फाइनल जो हमारा साइन आएगा वो प्लस का आएगा. अगर कोई नेगेटिव नंबर है, उसका पावर इवन नंबर है, तो उसकी जो फाइनल साइन आएगी वो प्लस की आएगी, और 2 का पावर 4 हो जाता है 16. तो ये वैल्यू हो गई हमारी +16. मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 16 इज 48, जो कि प्लस में आ रहा है. तो पहले टर्म की वैल्यू हमारी 48 आ गई है. Now that we have found the value of the first term as 48, let us now go ahead and solve the second term. और जब आप सेकेंड टर्म सॉल्व करें, आप उसको साइन के साथ सॉल्व करें. इट इज -15x²y. तो इसे हम इसके साइन के साथ सॉल्व करेंगे, -15x²y. तो पहला तो आपको यह समझना होगा कि -15x² का y का मतलब होता है -15 इंटू x² इंटू y. x की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दी हुई है, y की वैल्यू क्वेश्चन में -2 दी हुई है. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. -15 की जगह -15 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय x² की जगह 1² हो जाएगा, मल्टीप्लाई y की जगह -2 हो जाएगा. नाउ दिस विल बी -15 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय -2 विल बी एज इट इज. तो नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, उनके साइन को भी मल्टीप्लाई करना है. 1 का कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है. 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा. सो दिस इज -15 मल्टीप्लाइड बाय -2. 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बिकम +30. तो हमारा पूरा सेकेंड टर्म होगा +30. So the value of the second term comes to +30. And now let's solve the third term. It is 4z. z की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 4z हो जाएगा 4 into 3 which is 12. Now adding all of them, 48 plus 30 is 78. 78 plus 12, answer is 90. So second expression, our answer is 90.
Now, after solving the equations, let's do some basic exercise on identification of expressions as monomials, binomials, trinomials. The first example is minus 3xyz. Now you can see that there are various parts here. There is a constant minus 3, there is a variable x, y and z. But all these parts are connected by multiplication. Minus 3xyz का मतलब होता है minus 3 into x into y into z. That is how it becomes minus 3xyz. And remember, when they are connected by a multiplication sign, they all will represent a single term. ये सभी मिलकर एक सिंगल टर्म बन जाते हैं जब वो मल्टीप्लिकेशन के साइन से जुड़े हुए हो. टर्म्स को सेपरेट करने वाले दो साइन हैं, वो प्लस और माइनस के. यहां पर प्लस और माइनस का कोई साइन नहीं है, तो ये सारे के सारे एक सिंगल टर्म होंगे. सो वी विल कॉल इट अ मोनोमियल. Moving to the second part. The second example is 4x square yz plus 9 minus 5x cube. Now remember, the different parts of an expression are separated by a plus sign and a minus sign. And here I can see that there are two. There is one plus sign, there is one minus sign, and they are separating this expression into three parts. This is the first part, we call it first term. 4x square yz. This is the second part, we call it the second term. And this is the third part, we call it the third term. So here there are three terms, so it becomes a trinomial. Now remember that trinomial is also a polynomial. So if the question comes, is a trinomial polynomial? Answer is yes. Or can we say a polynomial has a category of trinomial? Yes. Third example, minus 7, a single term. So it's a monomial. Now a question will arise in your mind कि this is a single value. ये तो सिर्फ एक नेगेटिव इंटीजर है, इसे रेशनल नंबर भी कहते हैं. ये तो सिर्फ एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हुआ? हाउ विल इट बिकम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? It's only a negative integer. It is not algebraic expression to be classified as a monomial. So remember, a single negative integer, और अगर -7 की जगह +7 भी होता तो भी इसे algebraic expression में क्लासीफाई किया जा सकता है. कैसे? अब इसका 7 जो है -7 है, वो तो कांस्टेंट है, और algebraic एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए. तो इसका वेरिएबल कहाँ है? आपको लगेगा अरे इसका वेरिएबल तो है ही नहीं, इसमें तो कोई x कोई y टर्म नहीं है. तो हम किसी भी नंबर के आगे वेरिएबल लगा सकते हैं और कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं. और वेरिएबल लगाने के लिए आपको एक छोटा सा रूल समझना पड़ेगा, जीरो पावर. जीरो पावर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज जीरो पावर. आपने एक वेरिएबल ले लिया x, उसका पावर लगा दिया 0, इसकी वैल्यू होती है 1. किसी भी वेरिएबल या इवन दो किसी नेचुरल नंबर भी अगर आपने उसका पावर लगा दिया 0, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1. 1 पावर 0, वैल्यू इज 1. हमने 1 कंसीडर किया है. 100 पावर 0, वैल्यू इज 1. तो किसी भी नेचुरल नंबर हो या वेरिएबल हो, y पावर 0, वैल्यू हो जाएगी 1. तो कोई भी वेरिएबल हो जिसका पावर 0 आप लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है. अब देखिएगा कैसे हम -7 को
एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। -7 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x पावर 0 से, तो ये हो गया इसका कांस्टेंट और ये हो गया इसका वेरिएबल। अब इसे जब आप अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये हो गया -7 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो हो गया ओनली -7। तो हम ये देख सकते हैं कि -7 अगर अकेला खड़ा हुआ है, अगर एक सिंगल नंबर के हिसाब से भी अगर आ रहा है या -7 या +7 या कोई भी हो, तो उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे एक वेरिएबल देना होगा। और हम उसे कौन सा वेरिएबल दे सकते हैं? हम उसे x पावर 0 का वेरिएबल दे सकते हैं या y पावर 0 दे सकते हैं या a पावर 0 दे सकते हैं। कोई भी वेरिएबल एक पावर 0 लगाकर आप उसे दे दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरिएबल की जब पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो x पावर 0 मतलब हम उसे एक्चुअली किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -7 ही रहेगा। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल टर्म -7 है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके पास एक कांस्टेंट है, इसके पास एक वेरिएबल है। और ये कितने टर्म्स का एक्सप्रेशन है? ये सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल बनेगा। मूविंग ऑन टू द फोर्थ एग्जाम्पल, x square plus y square plus z square minus p square. We can see that there are 4 parts of this expression and they are connected by plus sign, a plus sign and a minus sign. So there are 4 parts, so we call it a quadrinomial. And remember that the quadrinomial is a polynomial. Next, fifth example, x plus 5. We can see that there are 2 parts, x and 5. They are connected by a plus sign. 2 parts, so it is a binomial. And remember that the binomial is also a polynomial. Finally, coming to the sixth example, it is 6a cube and b. First of all, अगर बीच में कोई साइन नहीं है मतलब ये मल्टीप्लाई है। 6 इंटू ए क्यूब इंटू बी, ये मतलब होता है 6 ए क्यूब बी कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बी। जनरली जो मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है वो हिडन होता है, इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 ए क्यूब बी। अब ऐसा हमने इसलिए किया है, अपने सिंप्लिसिटी के लिए किया है, क्योंकि बड़े बड़े टर्म से कितना मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, इसीलिए हमने डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन का साइन हिडन करके 6 ए क्यूब बी बोला है। और याद रखना इंपॉर्टेंट बात कि 6 ए क्यूब और बी, इवन दो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये कांस्टेंट है, ये 2 अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन मल्टीप्लाई करते ही ये सब एक सिंगल टर्म बन जाते हैं। तो इवन तो आप बोलेंगे सर 6 अलग है, ए अलग है, बी अलग है, तो ये ट्राइनोमियल क्यों नहीं है? ट्राइनोमियल ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पार्ट्स को सेपरेट करने का काम या तो प्लस साइन करेगा या माइनस। मल्टीप्लाई उन्हें सेपरेट नहीं करता, मल्टीप्लाई उन्हें जोड़ देता है, एक साथ ले आता है। तो 6 ए क्यूब बी विल बी एक्चुअली अ मोनोमियल। Coming to the most important part, which is the operations on algebraic expressions. Now we know that there are 4 operations: addition, subtraction, multiplication and division. In our purview, we will learn addition and subtraction. You have to pay utmost attention on the process. The addition of algebraic expression follows the similar principle. The basic principle of addition is that only like terms can be added. Now remember, like terms are terms which have similar variables. Same variables वाले जो terms होंगे उन्हें like terms हम कहते हैं। To understand this, 5 tables plus 7 tables equals to 12 tables. So tables and tables, they are like entities, so we have added them together. However, 5 table और 7 table plus करें तो 12 table आता है, क्योंकि ये दोनों like entities हैं।
बट 5 टेबल्स एंड 7 चेयर्स, इट विल नॉट बी 12 टेबल्स और 12 चेयर्स. अगर आप 5 टेबल्स और 7 चेयर्स को ऐड करने लग जाएं तो आपको ना तो 12 टेबल्स मिलेंगे ना तो आपको 12 चेयर्स मिलेंगे, आपको सिर्फ 5 टेबल्स और 7 चेयर्स ही रहेंगे. Thus, the sum of two unlike terms can only be indicated. तो अगर दो unlike entities हैं, दो unlike terms हैं, तो आप उसे ऐड नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंडिकेट किए जा सकते हैं, एज इट इज लिखे जा सकते हैं. 5 टेबल प्लस 7 चेयर को आप प्लस नहीं कर सकते. 5 टेबल प्लस 7 चेयर will remain 5 टेबल प्लस 7 चेयर. You can only indicate them by writing in this manner. Let us now understand this through an example of variables, both like and unlike terms. Coming to the rule of addition, the sum of several like terms is another like term whose coefficient is the sum of coefficient of all the like terms. क्या इसका मतलब है? Let us understand this through an example. Let's add 5x plus 3x. So let us understand this through an example. The sum of several like terms. So we have taken two like terms. One is 5x, another is 3x. Why they are like terms? Because the variable x is similar. So they both are like terms. Here in 5x the variable is x, in 3x the variable is x. So when the variables are same, it is a like term. So the sum of several like term is another like term whose coefficient is sum of the coefficient of like terms. तो अब अगर इन दोनों को प्लस करना है तो 5x में x का कोफिशिएंट 5 है और 3x में x का कोफिशिएंट 3 है. इन दोनों को प्लस कर दीजिए. 5 प्लस 3 8 एंड कीप द वेरिएबल सिमिलर. उसे हमें चेंज नहीं करना है. सो 5x प्लस 3x, जस्ट एड द कोएफिशिएंट और रादर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को आप प्लस कर दो. 5 प्लस 3 8 आ गया. एज इट इज आपका जो वेरिएबल था उसे आप चेंज मत करो, उसे आप सेम रख दो. 5x प्लस 3x विल गिव अस 8x. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल ऑफ एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइक टर्म्स को ही ऑपरेट कर सकते हैं. प्लस करें या माइनस करें, मल्टीप्लीकेशन करें, डिवीजन करें, वी कैन नॉट ऑपरेट अनलाइक टर्म्स. सेकेंड, व्हाट इज द रूल? जस्ट कीप द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसको आप प्लस कर दो, वेरिएबल को आप एज इट इज सेम रखो. 5x प्लस 3x में न्यूमेरिकल 5 और 3 प्लस कर दिया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट थे प्लस कर दिया. 5 प्लस 3 8 आ गया. वेरिएबल को हमने सिमिलर रखा. आंसर इज 8x. Basic understanding. We'll go ahead and do some more typical example. Now, while we were talking about the addition of algebraic expression, in the same series, let us go ahead to the next example. We have to add 6xy square plus minus 4xy square plus xy square plus 5xy square. Now first of all I see that are the variable terms same in all the four? I see that the variable is xy square, xy square, xy square and xy square. Since the variable is xy square, they all are like terms. And since they are like terms, we will add the coefficients or the numerical coefficient को हम add करेंगे. In the first, the numerical coefficient is 6. In the second term, the numerical coefficient is minus 4. In the third, there is no numerical coefficient. When there is no numerical coefficient, then you place 1 as a numerical coefficient. जब कोई नंबर ना हो तो आप वहां पर 1 लगा सकते हैं. And plus in the last term, the numerical coefficient, it is 5.
लेट अस ऐड ऑल, जितने भी प्लस वाली वैल्यूज है, 6 भी प्लस वाली वैल्यू है, 6 के पहले कोई साइन नहीं है, मींस प्लस का साइन है, तो 6 भी प्लस में है, 1 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है। 6 + 1 7, 7 + 5 12, और 12 में प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, 12 - 4 ये हमें मिलेगा 8। हमने कोएफिशिएंट्स को ऑपरेट कर लिया, प्लस प्लस वालों को प्लस कर लिया, माइनस वाले को माइनस कर दिया, हमें 8 मिला एज अ कोएफिशिएंट, और उसके आगे आप वेरिएबल लगा दीजिए xy²। दिस इज द आंसर 8xy²। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स देखे xy², 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 xy²। सभी वेरिएबल सेम है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हैं, तो हमने कोएफिशिएंट, जितने भी लिटरल कोएफिशिएंट हैं, जो नंबर्स हैं, उनको हमने ऑपरेट कर दिया। 6 - 4, यहां कोई कोएफिशिएंट नहीं था, कोई नंबर नहीं था, तो 1 लगा लेना है, और ये 5। सभी को प्लस करना है, तो 6 + -4 + 1 + 5। तो जितने भी प्लस वाले नंबर हैं, 6 भी प्लस वाला नंबर है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन होता है। +6 + 1 + 5, प्लस करेंगे तो आ गया +12, और इसमें ये -4 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा +8। +12 - 4 +8, और आगे लगा दीजिए xy²। आवर आंसर विल बी 8xy²। रिमेंबर, +8xy² में प्लस का साइन लिखा नहीं जाता, तो इसे हम बोलेंगे 8xy²। प्लस का साइन जो होता है हिडन होता है, छुपा होता है। तो क्वेश्चन सेज कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई। तो पहला तो हमें यहां पर लाइक टर्म ढूंढना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट टर्म इज 5x² - 2x + 7 - 9 + 7x - 3x² + 4x² - x + 1. So here we can see that there are different variables. One of the variable is x², another variable is x, and finally we have constant values numbers, which is +7 - 9 + 1. So what we will do is we will first write down all the like terms. ये x² वाले जितने भी टर्म्स होंगे ये like terms होंगे, और x वाले जितने भी टर्म्स होंगे वो like terms होंगे। नंबर्स जितने होंगे वो एक like terms होंगे। तो पहला तो हम ये देखते हैं कि x² वाले टर्म्स कौन कौन से हैं। तो ये पहला है 5x²। 5x² के पहले कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, तो ये हो गया +5x²। x² का दूसरा टर्म है ये -3x²। इसके पहले माइनस की साइन है, तो ये है -3x²। तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए, +5x² - 3x²। रिमेंबर, वेरिएबल हमें देखना है, वेरिएबल की पावर 2 है, यहां भी वेरिएबल की पावर 2, x² वाले टर्म्स है ये। x² का एक और टर्म है 4x²। इसके पहले प्लस का साइन है, तो यहां लगाइए +4x²। ये हो गए हमारे लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स विद वेरिएबल x²। और कोई भी देखिए यहां पर x² वाला टर्म नहीं है, यही 3 है हमारे x वाले टर्म। अब अगर हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये +5 है, ये +4 है, इनको पहले प्लस कर लीजिए। +5 + 4 ये हो गया +9x²। रिमेंबर, वेरिएबल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। +9x², और इसमें कर दीजिए -3x²। वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा, वेरिएबल हमारा x² है, x² ही रहेगा। 9 - 3 करना होगा, हमारे जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनको ऑपरेट कर दीजिए। +9 - 3, तो 9 - 3 वो हो जाता है 6। आंसर आ गया 6x²। तो x² वाले जितने भी टर्म है उनको हमने सिंप्लीफाई करा, हमें मिला 6x²। यहां कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है। Now after simplifying the like terms with a variable x², let us now identify the terms with a variable x. x वाले वेरिएबल के कौन कौन से टर्म है? तो पहला ये रहा -2x, इसको आप साइड में लिख लो, -2x।
अगला टर्म है ये +7x, ये लिख लिया +7x। अगला टर्म है -x, ये लिख लिया -x। अब हम चलिए इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2x है, ये +7x है, ये -x है। जब कोई भी नंबर ना हो, सिर्फ लेटर लिखा हो, तो यहां पर आप 1 लगा लो, तो ये हो जाएगा -1x। अब इसे सिंप्लीफाई करने के हिसाब से पहले तो इसे रीराइट करते हैं। प्लस वाला टर्म पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में। तो प्लस वाले टर्म के साथ उसकी साइन भी ले लीजिए, तो हो गया सबसे पहले +7x, उसके बाद लिखिए -2x, और उसके बाद लिखिए ये -1x। अब इनको ऑपरेट करेंगे तो वेरिएबल तो सेम रहेगा, x तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। नंबर्स को ऑपरेट कर लो आप, +7 - 2, तो 7 - 2 होता है 5, और 5 - 1 आप कर लो, ये आ गया 4। आंसर जो आ रहा है प्लस में आ रहा है, कोई साइन नहीं आ रही, मतलब प्लस की साइन, तो ये आ गया +4x। तो x वाले जितने भी लाइक टर्म्स थे उनको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमें मिला +4x। और अब चलिए कांस्टेंट को हम ऑपरेट करेंगे। नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग द टर्म्स विद द वेरिएबल x, इट्स नाउ टाइम टू डील विद द कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट वैल्यू में नंबर्स यहां पर हमारे पास है +7, -9 एंड +1। So we have +7, -9 and +1. Let us operate them. +7, -9 and +1। यहां पर हमारे पास प्लस के दो नंबर हैं, +7 है और +1 है। इनको आप प्लस कर लीजिए। +7 + 1 इज +8, -9। अब बच्चों यहां पर इंटीजर ऑपरेशन देखिए, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। 8 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो इनका जो ऑपरेशन होगा वो माइनस का ऑपरेशन होगा। माइनस का ऑपरेशन होगा मतलब हम 9 में से, बड़े नंबर 9 में से 8 को माइनस कर देंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन माइनस का होगा, कि बड़ा नंबर जो 9 है उसमें से 8 आप माइनस कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक नंबर प्लस का एक माइनस का, ये हमने चार्ट में देखा है, तो ऑपरेशन माइनस की होगी। 9 - 8 कर दीजिए, वो 1 आ गया। साइन किसका लगाना है? साइन दोनों में से बड़े नंबर का लगाना है। 8 और 9 में से 9 बड़ा नंबर है, उसकी साइन माइनस है। साइन मतलब उसके पहले जो सिंबल लगा है वो माइनस है, उसे साइन लिया जाता है। तो 9 का जो साइन है वो माइनस है, तो 1 के पहले भी हमें माइनस का साइन देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि 9 बड़ा नंबर था। 8 और 9 में से 9 बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर है उसकी साइन लगेगी। 9 के पहले माइनस की साइन है, तो 1 को क्या साइन लगेगी? माइनस की साइन लगेगी। तो ये वैल्यू हमारी -1 आ गई। सभी टर्म्स को अब हम एक साथ लिख लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है x² वाली टर्म बन रही है +6x², x वाली टर्म बन रही है +4x, और कांस्टेंट टर्म बन रही है -1। जनरली जो 6x² के पहले का जो प्लस साइन है नहीं लिखा जाता, हिडन होता है, तो इसे बोलेंगे हम 6x² +4x -1। दिस इज अवर आंसर आफ्टर डूइंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर बन रहा है। Some basic examples for addition. The first example is 3x and 7x. So we have to add these two. As we have to add these two, first look at the like terms. Are they like terms? Yes, they are like terms, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर सेम है, x and x। वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर भी दोनों में सेम है, दोनों में x की पावर 1 है जो कि हिडन पावर है। तो ये लाइक टर्म्स तो है। ऐड करेंगे तो कॉफिशिएंट को प्लस कर दीजिए, 3 + 7, ये हो गया 10x। दिस इज द आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल, 7y + -9y। ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि वेरिएबल हमारा y और y, तो y तो वेरिएबल सेम रहेगा, पर कोएफिशिएंट यहां पर देखिए, ये है 7 मतलब +7, और ये है -9। अच्छा, ये -9 यूं है क्योंकि इसको आप देखो, ये है 7 + -9, ऐसा है ये। तो याद रखिए, प्लस ब्रैकेट और उसके बाद माइनस। पहले प्लस का सिंबल है, बाद में ब्रैकेट है, उसके बाद माइनस है। तो ब्रैकेट जो होता है एक मल्टीप्लाई की तरह काम करता है। तो
प्लस ब्रैकेट का ओपन ब्रैकेट और उसके बाद माइनस, इसका मतलब होता है प्लस इंटू माइनस, और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो 7 प्लस ब्रैकेट माइनस 9 का मतलब हो गया 7 माइनस 9। और अब यहां पर ध्यान देना है कि 7 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। अगर 7 के पहले प्लस का साइन है तो ये +7 है, ये -9 है। +7 -9, एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो ऑपरेशन हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा 9 - 7, वो हो गया 2। साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 7 और 9 में से 9 है, उसके पहले साइन माइनस लगा हुआ है, तो यहां आप साइन लगाइए -2। तो +7 और -9 ये हो गया -2, और आगे लग जाएगा y, आंसर हो जाएगा -2y। दो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, पहला प्लस, बाद में ब्रैकेट, बाद में माइनस, इसका मतलब होता है प्लस इंटू माइनस, जो होता है प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और +7 - 9 ये हो जाएगा -2। आंसर इज +7y प्लस -9y, आंसर होगा -2y। द थर्ड एग्जाम्पल 2xy 5xy and -xy. So first of all we see that the variable is same in all the three terms xy, so we can conclude that they are like terms. Now that we know that they are like terms, let's add them. 2xy plus 5xy plus -xy. So let's keep the variable as it is, it will be xy, and let's now add the numerical terms. In 2xy the numerical term is 2, rather we can say it is +2. In 5xy the numerical term is +5, and in -xy there is no numerical term, and remember, when there is no numerical term you take it as 1, so it is -1 along with the sign -1. Let us operate them. +2 plus 5 is +7, +7 - 1 is +6. So we will have the final answer as +6xy, which can be written as 6xy.